A nationwide cry for justice is, of course, echoing across the country, and a special investigation team has been formed to probe this matter. The victim was a second-year postgraduate student who had a bright future ahead for her. Meanwhile, a Federation of Resident Doctors Association has announced the extension of its indefinite strike after their meeting with officials from the Union Health Ministry. They have, of course, also called out for a swift resolution, a speedy meting out of justice and impartial investigation into the matter. The Indian Medical Association has gone on to demand a national legislation to ensure the protection of doctors in hospitals as well. This is, of course, taking place, but some horrific details have now emerged regarding the autopsy report that indicates that there were deep wounds in the genitals of the victim. It was also, in fact, indicated in the autopsy report that blunt force was used on the victim by beating her, murdering her. Then, of course, the heinous rape had taken place. The accused, meanwhile, has scratches on his hands and his face, indicating that the victim did resist. Now, according to police sources, the wounds on the accused's nail was also found as well. Meanwhile, joining me on the broadcast is my colleague Aditya Kumar from AIIMS Delhi, Rainik Datta from Kolkata, Prathamesh live from Mumbai. Prathamesh, take our viewers through scenes on the ground. What do the protesters have to say? Yes, correct. If I show you the visuals as well, the protest is going on in front of Nair Hospital in Mumbai, and they are saying that we need justice and justice shouldn't be delayed. Still the protest is going on, as you can see by this also. The strongly condemned the heinous crime committed against the PGY2 resident. It's been written here the way the incident happened in Kolkata, and here the doctors and resident doctors are protesting. I will talk to some of the resident doctors as well. Sir, what are your demands of this protest? एक्चुअली एक बात देखिए कि ये जो इंसिडेंस हुआ है बंगाल में हुआ है, आज बंगाल में हुआ, कल कोई और हो सकता है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अगर कोई डॉक्टर से कुछ गलती होती है एक बार, तो आज सारा मीडिया डॉक्टर ने ये किया, डॉक्टर ने वो किया, पेशेंट को ऐसा हुआ वो हुआ, लेकिन आज एक डॉक्टर के ऊपर रेप हुआ है जिसको आप भगवान मानते हैं, उसको अगर रेप होता है फिर भी आज हमको खुद रास्ते पर उतरना पड़ता है और मीडिया शांत बैठता है। आज मीडिया को हमको जगाना पड़ रहा है कि बात आप ऊंची उठाए, कि सरकार तक पहुंचाए। जैसे पीपल प्रोटेक्शन एक्ट है, हम भी मांग करते हैं कि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट रहना चाहिए। यहाँ पे हमारी लड़कियां रात को 3-3 बजे तक नाइट ड्यूटी भी करती है, उनके लिए कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रहना चाहिए, हमारी ये मांग है। और इस तरीके का फिर से ना हो, इसका कुछ कानून केंद्र शासन और हर राज्य शासन अपने डॉक्टर्स के लिए इसका आश्वासन दे। So you have heard that the way they are trying for the justice and they want justice in anyhow. So, what you want to say? What is your demands of this protest? So we are demanding CBI inquiry for the case. We are demanding justice for the victims' parents, and we want the investigation to be fast forward, and we want safety at our workplaces. So this is the current situation right now in Mumbai in front of Nair Hospital, and the protest is still going on. The resident doctors came out from the hospital as well, and now this protest has been going on over here, and now we need to see that when the justice will be provided to the in the Kolkata, which has been happened, the rape and murder which has been happened in Kolkata. Yes. In fact, we also have with us our colleague Aditya Kumar, who is also joining us from AIIMS Delhi. Aditya, we've of course spoken just about an hour back or so. What's the status like? We've heard from Prathamesh in Mumbai, we've heard from the protesters what their demands are, but shifting focus to AIIMS in Delhi, which is the most premium hospital in the country, offering world-class facilities to people even from the rural areas. What do the doctors at AIIMS have to say? जी मैं आपको यहाँ के पहले एम्स की सिटी दिखा देता हूँ कि देखिए ये लोग बैठे हुए हैं, ये सब वैसे लोग हैं जो वापस आए हैं भीतर से। जैसे 10:30 से लेके 11 बजे का कॉल था डॉक्टर्स का, वो एक जगह इकट्ठा होंगे
तो 10:30 बजे जो है वो निकल करके घर से तो निकलेंगे, लेकिन वो अपने अपने ओपीडी में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे एक जगह पे जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम एम्स के अंदर में, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर वो बैठ करके मौन व्रत रखेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और ये कंटिन्यू लगातार जब तक कि जो रेप पीड़िता है, रेप के बाद हत्या कर दी गई थी डॉक्टर की, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता तब तक की ये कॉल है, यानी अनिश्चितकालीन जो प्रदर्शन है वो है। इसके वजह से जो आम जनता है वो परेशानी झेल रहे हैं। इनके कुछ डिमांड्स है डॉक्टर्स की। अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर के, तो दिल्ली में पिछले एक महीने की हम बात करें तो जिस तरीके से जीटीबी हॉस्पिटल में घटना हुई, जीटीबी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की घुस करके हत्या कर दी गई, डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे, तो ये पहले से भी डिमांड रही है इनकी, जिसमें ये साफ कहा गया है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। डॉक्टर्स जो ज़्यादा देर तक काम करते हैं, कभी कभी 24 घंटे उनकी ड्यूटी हो जाती है, ऐसी स्थिति में उनके लिए रिटायरिंग रूम होना चाहिए जिसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए। इस तरीके की डिमांड्स है। साथ ही जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के उनके केबिन के बाहर में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाने चाहिए जो डेडिकेटेड होंगे सिर्फ उस डॉक्टर की सुरक्षा के लिए, या कोई बाहरी जो अनऑथराइज्ड लोग हैं, अनऑथराइज्ड लोगों की एंट्री के लिए। इस तरीके के जो डिमांड्स हैं वो डॉक्टर्स कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। और ये डिमांड पहली बार, ऐसा नहीं है कि इस तरीके का मामला ये पहली बार ऐसा उठा हो या इस तरह की मांग उठाओ। इससे पहले भी जो है कई डॉक्टर्स ने इस बात को लेकर के जो आवाज़ उठाई है, जिसमें डॉक्टर, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या किसी भी हॉस्पिटल्स में जब कोई मरीज की मृत्यु होती है या किसी तरीके से कोई दिक्कत होती है, ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो सॉफ्ट टारगेट है वो टारगेट डॉक्टर्स होते हैं। और डॉक्टर्स कई बार उस पर हमला कर दिया जाता है और उस वजह से जो मेडिकल स्टाफ होते हैं उनको बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। तो ये डिमांड जो है हमेशा से रही है, उसी को अब जो है जोर दे दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से कलकत्ता में बर्बरता बरती गई, जो डॉक्टर युवती थी उनके साथ में पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या की गई, तो इस तरीके के जो सिक्योरिटी नॉर्म्स, सिक्योरिटी ब्रीच के साथ में, क्योंकि जो संजय रॉय गिरफ्तार हुआ है, जो आरोपित है, वो आरोपित सिक्योरिटी में ही था, सिविक पुलिस में ही था, और वो उसकी जो रीच थी वो हॉस्पिटल के सभी कोने कोने में थे, बिना बेरोक टोक के वो सब जगह जा सकता था। उसके बाद उसने ये इस तरीके का जो हत्याकांड है और दुष्कर्म है वो किया। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आप किसी को भी ऐसे कैसे आप जॉब पे रख सकते हैं या डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए रख सकते हैं। प्रॉपर उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना जो है और जिम्मेदार जो लोग हैं उनको सही से जो पनिशमेंट है वो दिया जा सके। एक पनिशमेंट को लेकर के भी बहुत बड़ी डिमांड इनकी है कि जो भी आरोपित रहे हैं उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। साथ ही इस तरीके के जितने भी आरोपित हैं उनको उनकी पहचान की जानी चाहिए, और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनके तब जब तक कि न्याय न मिल जाता तब तक बर्खास्त और सामाजिक रूप से उनको माफी मांगने की बात जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। और ये डॉक्टर्स पूरे भारत के एक स्वर में, जो डॉक्टर्स हैं वो एक स्वर में एक ही डिमांड कर रहे हैं और उनकी लंबी फहरिस्त है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.